اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور ہمارے اس چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش بی جے پی یوگی سرکار نے جو گھٹیا اور نیچ فیصلہ لیا ہے مدارس اسلامیہ کے سروے کا، اس فیصلے پر ملک ہی نہیں، عالم اسلام کی سب سے بڑی دینی درسگاہوں میں دارالعلوم دیوبند نے یوگی یعنی بی جے پی سرکار کے اس گھٹیا فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اسی کو لے کر باقاعدہ اس مہینے کی 24 تاریخ کو ایک اہم کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں حکومت کے اس فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا اور مستقبل کا لائحہ عمل بنانے کے لیے مشورے بھی سامنے آئیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ یو پی میں مدارس کا سروے کرائے جانے کا مسئلہ باعث تشویش ہے، اور اس فیصلے کا جائزہ لینے اور آئندہ کا لائحہ عمل بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے ذمہ داران مدارس کی ایک اہم میٹنگ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز منعقد مجلس تعلیمی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا، اتر پردیش کے نمائندہ مدارس اسلامیہ کا ایک اجلاس طلب کیا جائے اور اس میں مدارس کا سروے کرائے جانے کہ حکومت اتر پردیش کے اعلان کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کرنے کے بعد لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اس نمائندہ اجلاس کے لیے 24 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی۔ آئیے اس وقت بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ امیت شاہ نے بڑا بیان دیا ادھو جی ٹھاکرے کو لے کر۔ امیت شاہ نے کہا کہ ادھو نے دھوکہ دیا، سزا تو ملنی چاہیے۔ ممبئی پر انہوں نے کہا کہ ممبئی پر اب صرف بی جے پی کا غلبہ ہو، ممبئی میونسپل کارپوریشن میں بی جے پی کی حکومت ہوگی ابھی، اور فڈنویس نے کہا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اب ممبئی میونسپل کارپوریشن بالکل قریب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب سیاسی ہلچل مہاراشٹر میں اور ممبئی میں شروع ہو گئی ہے، اور اب امیت شاہ جو ہے ادھو ٹھاکرے کو سزا
देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर शिवसेना भी बिल्कुल आक्रामक गुस्साए अंदाज में कहती है कि कोई पैदा नहीं हुआ है जो शिवसेना को सजा दे, शिवसेना को मजा चखाए। धोखा किसने दिया ये सबको मालूम है, घटिया और नीच हरकत किसने की ये सबको मालूम है। इसलिए शिवसेना ने कहा कि जल्दी ही बीजेपी को हम उसकी औकात देंगे। अमित शाह के बयान पर शिवसेना लीडरान ने सख्त जवाब दिया। बीजेपी बाल ठाकरे की उंगली पकड़कर रियासत में आई, यानी ये भी सबको मालूम है। शिवसेना ने बता दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की उंगली पकड़कर आगे आई थी, और फिर धोखा देना और नीच हरकत करना तो ये बीजेपी का काम है। वैसे जल्द ही बीजेपी को हम उसकी औकात दिखा देंगे। अगला दिन रियासत गुजरात के अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि गुज़िश्ता कल अहमदाबाद में राहुल जी गांधी का जबरदस्त भाषण हुआ। बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी और गुजराती अवाम से 8 वादे किए। साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस कारकुनान को खिताब करते हुए राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हर गुजराती, वहां पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुजराती अवाम से 10 लाख रुपए तक का इलाज और 300 यूनिट मुफ्त बिजली समेत 8 इंतहाई अहम वादे किए, जो इस तरह है कि हर गुजराती को 10 लाख रुपए तक का इलाज, किसानों के 3 लाख रुपए का कर्ज माफ, किसानों की बिजली मिल माफ, आम सारिफिन को 300 यूनिट फ्री, नौजवानों के लिए 10 लाख मुलाजमतें, 50% मुलाजमतों में हक लड़कियों का होगा। गुजरात में सरकारी मुलाजमतों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म कर देंगे और नौजवानों के लिए 3000 यूं समझिए कि भर्ती दी जाएगी। नौजवानों के लिए 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गुजरात के दूध कारोबारियों को 1 लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी। 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे गुजरात में खोले जाएंगे। 4 लाख रुपए का कोविड कंपनी सेशन गुजरात के इन 3 लाख कुंभों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने लोगों को कोविड में गंवाया है। करप्शन के खिलाफ कानून लाएंगे और गुज़िश्ता 27 सालों में हुई करप्शन की जांच होगी और कसूरवारों को जेल भेजा जाएगा। तो गोया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में गुजरातियों से 8 बड़े वादे किए और जबरदस्त अंदाज में बीजेपी की घटिया हरकतों पर बरसे और बीजेपी ने मुल्क का सत्यानाश कैसे कर दिया खुलकर राहुल जी ने बयान किया। हिजाब को लेकर बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि कर्नाटक हिजाब मामला, कर्नाटक से नीच नाटक शुरू हुआ था, घटिया हरकत शुरू हुई थी क्योंकि वहां पर भी बीजेपी की हुकूमत है। तो कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि हिजाब, नकाब, पर्दा कैसे तालीमी इदारों के डिसिप्लिन के खिलाफ है। जरा बताए तो सही कि भाई इससे तालीम और एजुकेशन में हिजाब कहां रुकावट बन रहा है, डिसिप्लिन में क्या खिलाफ है। खैर 7 सितंबर को दोबारा इस मामले को लेकर समाअत होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आज इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत आसाम से। जी हाँ, आप जानते हैं कि 1 महीने में 3 मदरसे वहां सरकार ने तोड़ दिए हैं, बुलडोजर चला दिया है। इनको नहीं मालूम कि मदारिस की अहमियत क्या है और मदारिस ने इस मुल्क को कैसे आज़ादी दिलाई है। खैर मदरसे जो तोड़े गए, अब खबरें आ रही है कि बाकायदा 4 मुस्लिम तंजीमों की एक अहम मीटिंग इतवार को डीजीपी के दफ्तर में हुई और मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग में जमीयत उलमाए हिंद, ऐसे ही आसाम स्टेट कमेटी, नदवतुत तामीर, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस और इस्लामिक रिसर्च सेंटर ऑफ आसाम जैसी तंजीमें शामिल थी। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आसाम में तोड़े गए मदारिस की सरकारी खर्च पर दोबारा तामीर होगी। मदारिस में कानून के निफाज को यकीनी बनाने के लिए कमेटी का क़याम अमल में आ रहा है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल्स और आसामी ज़बान की वेबसाइटों पर यह दावा किया जा रहा है कि आसाम के बंगाई गांव जिला के
मरकज अल मारिफ मदरसे को बुलडोजर से तोड़ा गया था, फिर से सरकारी खर्च पर इसे बनाया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इतवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भास्कर ज्योति के साथ आसाम की मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग में ज्योति ने कहा कि इस मदरसे को दोबारा सरकारी खर्च पर तामीर किया जाएगा। खैर, खबर पूरी क्या है, जो भी वाकया सामने आएगा, इसकी जो भी सच्चाई सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे हुकूमत को ये तो जरूर पैगाम देंगे कि जहां बीजेपी है बड़ी घटिया और नीच हरकतें हो रही है, और बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करके 2024 इलेक्शन को जीतना चाह रही है। आइए इस वक्त रियासत गुजरात के सूरत शहर से बड़ी खबर आ रही, बल्कि गुजरात की बड़ी खबर है। गुजरात से के सूरत से हमारे रिपोर्टर शाह अब्दुल हमीद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गुजरात में गौ माता की मोहब्बत में जबरदस्त ऐलान किया था, 500 करोड़ रुपए का वादा किया था, लेकिन शायद वो वादा करके भूल गए। अभी फिलहाल ये खबर गुजरात के तकरीबन तमाम पेपर से में आई है कि मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना के 500 करोड़ रुपए भूल गए। यहां तक कि इतनी घटिया हरकत बीजेपी सरकार गुजरात ने की है कि जो 25-30 रुपए मिल रहे थे वो भी बंद हो गए। इस पर हमारे दोस्त है सूरत के, गुजरात के, जो भारतीय गौरक्षा मंच के संस्थापक अध्यक्ष है धर्मेश जी गामी, उन्होंने क्या कहा आप जरूर सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, गुजरात की डबल इंजन की सरकार जो गौ माता पोषण योजना के 500 करोड़ रुपया पिछले 5 महीनों से एक भी गौशाला और पांजरापोलों के संचालकों को दे नहीं रही है, गौ माता का शोषण कर रही है, तो ये पोषण के जो पैसे हैं, पोषण योजना का लाभ गुजरात की तमाम पांजरापोल संचालकों को मिले, ताकि ये गौ माता के मुंह तक ये पैसे जाएं। गौ माता का शोषण कब तक गुजरात में होता रहेगा? जी हाँ, तो सुन लिया आपने हमारे दोस्त धर्मेश जी गामी ने क्या कहा। यानी गुजरात की बीजेपी सरकार, आप समझ सकते हैं कि गौ माता की मोहब्बत का सिर्फ ढोंग है, नकली मोहब्बत है। जो 25-30 रुपए मिलते थे वो भी इस बेशरम सरकार ने बंद कर दिए, और 500 करोड़ का जो सुनहरी सपना दिखाया था, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री गुजरात भूल गए। आइए नाज़रीन, रियासत गुजरात के अहमदाबाद से एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि गुजरात में 2 मुस्लिम नौजवानों पर शरपसंदों ने हमला किया। गुजरात के सूरत में लसकाना के पास में सादिक और उसके दोस्त पर कल गाड़ी ओवरटेक मामले पर हमला किया गया। भरवार कम्युनिटी के शरपसंदों ने नशे की हालत में सादिक और उसके दोस्त इकबाल को गालियां दी, फिर सर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। वहीं पर मकामी लोगों ने 108 पर कॉल करके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। खैर, वहां से एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, अशरफ समेत कई यूजर्स ने गुजरात पुलिस को टैग करके कार्रवाई का मुतालबा किया है। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो इमदाद याफ्ता मदारिस है और अकलियती तालीमी इदारे हैं, माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल कॉलेजेस जो भी है, अब वो अपनी मर्जी से टीचर नहीं रख सकते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हुकूमत उन्हें अहल और मौजू असातिज़ा टीचर्स देती है तो उन्हें उनका तकर्रुर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमदाद याफ्ता अक़लियती तालीमी इदारे, स्कूल कॉलेज अपनी मर्जी से टीचर्स असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं कर सकते। अगर हुकूमत उन्हें अहल और मौजू असातिज़ा टीचर्स देती है तो उन्हें उनका तकर्रुर करना होगा। यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मगरिबी बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट 2008 को दुरुस्त करार दिया। हिंदुस्तान लाइव हिंदी के मुताबिक कोलकाता हाई कोर्ट ने इस कानून की दफा 8, 10, 11, 12 को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि यह शिक आइन के आर्टिकल 13(1) की खिलाफ वर्जी है, जो अकलियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतजाम करने की इजाजत देता है। तो खैर, अब जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है, आया है सामने, कहीं ना कहीं अब अकलियतों में, माइनॉरिटीज में इसको लेकर बेचैनी महसूस की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि लखनऊ के लवाना स्वीट होटल में भयानक आग लगी, जिसमें 2 अफराद की जलकर मौत और 7 के जख्मी होने की खबरें आ रही है। पुलिस के मुताबिक राहत और बचाव के काम के दौरान दर्जन से ज्यादा अफराद को होटल से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। उनमें से 9 जख्मियों को सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक खातून और एक मर्द को मुर्दा करार दे दिया। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में वाक़े होटल लवाना स्वीट में पीर की सुबह आग लगने का यह वाक़या पेश आया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों का हालचाल जाना और वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया है। जम्मू कश्मीर से हमारे रिपोर्टर श्रीनगर से मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में नई वोटर लिस्ट पर इलेक्शन कमीशन ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग जम्मू की इंतखाबी बिल्डिंग में शुरू हुई है। इस मीटिंग में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, कांग्रेस समेत कई दीगर पार्टियां हिस्सा ले रही है। जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत के लिए आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी 25 लाख नए वोटर्स को शामिल करने के बहाने अपने सियासी मफादात को मुकम्मल कर रही है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि हर एक पुश्तैनी बाशिंदे का वोटर फेरिस्तों में नाम दर्ज करना वक्त की अहम जरूरत है। वहीं पर जम्मू कश्मीर से यह भी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे यौम असातिज़ा के मौके पर कश्मीरी पंडित असातिज़ा ने जम्मू में जोरदार अंदाज में आंदोलन किया, एहतजाज किया और एलजी इंतजामिया को अपना वादा पूरा करना चाहिए, ऐसा डिमांड किया। दाद, खाज, खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।